मैंने सब जगह डाल दिया है मैसेजेस। कहाँ तक पढ़ना है वो तो टाइम के हिसाब से देखेंगे। 55 तक। ठीक है। गीता, सिग्नल का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अभी आपके पास बिल्कुल भी? नो, इट्स गुड। ऑलराइट। और आपने पता है वो वाला इट्स गुड बोला है, जैसे वो बोलता है क्षितिज के यहाँ वो बंदा आता है ना चेक कर जो पीछे। संदीप। अरे संदीप। स्टिल आई वुड रिकमेंड कि तुषार एक बार अपने पास बुक्स ओपन रखे दोनों, हाँ। जस्ट बैकअप। संदीप, इज एवरीथिंग गुड? या गुड। मंजिल इज हियर। हाय। वी गुड? गुड टू गो। हाय। हेलो, गुड क्या हाल इवनिंग। चाल है? आ गए? आपकी नींद पूरी हो गई जनाब? मैंने तो नींद नहीं की, बट है? यस। रियली? क्या बात है। तेरा चूड़ा। अभी टाइम है ना, आई विल कम बैक इन 2 minutes। टीम was मेंबर just ही आए हैं, हाँ ठीक है आप। was just जस्ट। या one या hour away from meeting Tushar today morning. Just 1 hour away. 1 आवर अवे क्यों? 1 घंटा और होती तो उठ जाते। अच्छा, 1 आवर दैट वे। या। No, I was there. You were there? वो पापा जी आप बोल रहे थे? हाँ। खिड़की से आवाजें नहीं आ रही थी, मेरे बच्चे आपको आवाजें ले रहे थे। अच्छा। नागपाल जी, बट मेरे को ये नहीं, मैंने तो देखा नहीं ना। मुझे ये नहीं पता था कि आप नीचे कौन है। मुझे लगा नागपाल जी है तो ये इसलिए आवाजें दे रहे हैं गौरव और ओ, प्राक। ओ। मैंने बाद में सुनैना ने मुझे बताया कि मंजिल आई हुई थी। मैंने बोला कि फिर तो मिल सकते थे। सामने तो थे, सामने बिल्कुल बगल में। अब तो ऐसे हाँ। बैठ सकते गैलरी से खड़े होके सामने होते हुए हेलो। हम मिल नहीं पाते। हमारी बैल्कनीज में हाई होती हैं। हाँ, इवनिंग तो ऑल्सो। बालकनी से कर देते कि तुषार प्लीज कम इन योर बालकनी, आई वुड हैव कम। Next time I'll come early. या मे बी हाँ। कम एनी टाइम, बट यू कैन सही जस्ट बात। कम स्ट्रेट। सुनैना को भूल जाओ। I'll meet you. All right, so Sanjeev ji is here. Sheetal, hello Monica ji. हेलो जी। Sapna, hi Sapna, Hi, how are you? fine, good. That's nice. आई Love. जॉइंड सपना दी ग्रुप टुडे। तो वो आज स्पाइन का करवा रहे थे, मैंने 5 मिनट के लिए ज्वाइन कर पाई थी मैं। सो शी वाज डूइंग अ वेरी वंडरफुल जॉब देयर, बहुत अच्छा ग्रेटिट्यूड सिखा रहे थे लोगों को। Very nice, very Thank you nice. so much. What was it about? वेरी वंडरफुल सपना जी। Thank you. 11 to 12 morning and magic book assignment practice, Okay, 5, 6. राइट, लवली। nice. Hello Dr. J. Please come on screen. Sanjeev ji, please come on screen. Welcome. Good evening. Very good evening. How are Yeah, you? please. Yeah, very good. I Lovely. think we are seeing Sanjeev ji for the first time, I believe. Yes. I mean, like, I feel like I'm Or you seeing have attended earlier also. Yeah, I have attended it once earlier, and it's the second time that I'm actually appearing for the group. But last time actually I had not introduced myself the first time. Right, right. right. Lovely. We would We love to can give hear you a your brief introduction otherwise. Yeah, yes. sorry. To you. Yeah, I was just telling the same. We would love to have your introduction. We would love to know about you. Sanjeev ji, would you like to introduce yourself
to our group? Yeah, I'm a Lieutenant Colonel, retired. I took premature retirement in 2013, and thereafter I was the chief engineer, ran a security agency in Punjab. I'm Mohali based. Today I run a franchise of Fabrico, which is laundry and dry cleaning business. Mhm. And I'm currently in my store, and that is where actually I thought, and I'm actually a poet. So I have launched 2 books already in the market, and there's third one, and I'm a storyteller also. So Love. this is how, that's the background, and I'm active on metaphysical things actually on Quora, wherein I do touch astrology, and I have been answering pan world maybe on such like say questions. I have taken such like maybe questions for quite some time now, and I've been into this field for last about maybe 4 decades now. So Lovely. it comes naturally to me. That's it. Lovely to have you with us. And we would Thank love to have insights from you about the book, about Paramhans Yogananda ji, and about anything which can give spiritual insights to our members. Thank you. Thank you so Okay. much. Thank you so much. So nice of you. Hi, Vandana. Hello, Shashi ji. Okay. Signals are weak, I believe. Right. Sheetal, hi Sheetal, are you there? So shortly people are joining. Yeah, Sheetal is also here. Yes, very much. I just went to grab a bottle of water. Lovely. Hi, everyone. Hello, hello. Good, good. I think the time we should start. It's already 7:05. Yeah, we must, I think. Yeah, people may join in Yep. later on. I mean, they will keep on joining. We should not delay it. So Sure. over to you, Sheetal. Okay, I'll take up the English one. Who's taking up Hindi? Monica ji. And will take Sheetal, please just tell them the pages in English and Hindi both. Thank you. Yes. Hello, everyone. Good evening, and welcome back to our book reading of Autobiography of Yogi. योगी जी की कथा अमृत के सेशन में आपका सबका फिर से स्वागत है। हिंदी की जो पीडीएफ फाइल है हम उसके पेज नंबर 96 के फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे और जो इंग्लिश की पीडीएफ बुकलेट है उसका 73 पेज के फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। सो वील स्टार्ट फ्रॉम पेज 73 ऑफ इंग्लिश वर्जन एंड हियर वी बिगिन। So last we were on the episode where the sage's the arm was almost cut, and we proceed from there. So I was deeply mortified to see I had injured the person of a divine-looking sage. Prostrating myself at his feet, I implored his pardon and offered my turban cloth to staunch the heavy spurts of blood. Son, that was just an understandable mistake on your part. The saint regarded me kindly. Run along, and don't reproach yourself. The beloved mother is taking care of me. He pushed his dangling arm into its stump, and lo, it adhered. The blood inexplicably ceased to flow. Come to me under yonder tree in 3 days, and you will find me fully healed. Thus you will feel no remorse. Over to you, Monica ji. जी हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। जी, Monica ji, you are Sorry. audible to us. Yeah, you're very much audible. I had to mute. बोलिए। हाँ जी, ये शीतल जो आपने अभी रीड किया है ये हम पढ़ चुके थे शायद पिछली क्लास में। एक आधा पैराग्राफ पीछे गए हैं थोड़ा सा। ओके फाइन। तो जब उस साधु की जिसको जो स्टेशन के ऊपर सिपाही था उनके बारे में उसने जो भी उसके साथ वृतांत हुआ था जो सुनाया तो इनको बहुत खेद हुआ। इन्होंने सोचा कि मतलब ये कितना लकी है
जो इसने उस घटना को देखा कि उसकी बाजू जो थी वो लगभग लटक गई थी, और फिर कुछ ऐसा जादू हुआ कि उन्होंने कहा कि 3 दिन के बाद मिलना, और 3 दिन के बाद जब वो मिलने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर ना तो कोई ब्लड का निशान है, और ना ही कोई चोट का निशान है, और ना ही बाजू में कुछ घायल हुआ हुआ है। तो ये देखकर उसको बहुत विस्मय हुआ, बहुत हैरानी हुई, और उन्होंने ये जो भी सत्य घटना ही कहेंगे, जो भी सिपाही के साथ हुई थी, उन्होंने ये घटना जब इन दोनों बच्चों को बताई तो इन बच्चों को बहुत अफसोस हुआ कि हम ये देखने से वंचित रह गए। और कितनी बड़ी बात है कि इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद भी उन्होंने इस सिपाही को माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। ये क्षमादान देना अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण है। और यहाँ पर क्या होता है कि एक पानी का गिलास भी थोड़ी सी देर से मिलता है तो उसमें भी अहंकार आ जाता है कि इतना समय क्यों लग गया। यहाँ पर बाजू कट गई तब भी उन्होंने उसको क्षमा कर दिया कि कोई बात नहीं, इसमें भी कुछ प्रभु की इच्छा होगी, ऐसा कहकर उन्होंने उसको जाने दिया। और बाद में न्यूज़पेपर में ये कटिंग जब छपी तो बहुत बड़ा चढ़ाकर उन्होंने छापा कि वो साधु का सिर ही धड़ से अलग हो गया था, जैसा कि होता है, बात एक होती है और 4 तरह से कहकर छापी जाती है। दैट वाज द सेम थिंग। और देवी संपदा का एक अक्षय भंडार है जिसकी खोज में ये दोनों बच्चे जाना चाह रहे हैं, और अब इनका यकीन इसको सुनने के बाद और दृढ़ होता चला गया। जी शीतल। राइट, या थैंक यू। जी हाँ, हमने ये थोड़ा सा पीछे का कवर किया था, तो डू यू वांट मी टू स्किप दीज पैराग्राफ्स या आज का कंटिन्यूएशन बनाए रखें? नहीं नहीं, आप चलो स्किप कर दो, ये अच्छे से एक्सप्लेन हो गया था। हाँ, मुझे लग रहा है कि हमें आगे जाना चाहिए। सो आई थिंक वील स्टार्ट फ्रॉम हियर। हाँ जी। So we still are on page 73, but the paragraph's in the middle of the page. Amar and I lamented that we had missed the great yogi who could forgive his prosecutor in such a Christ-like way. India, materially poor for the last 2 centuries, yet has an inexhaustible fund of divine wealth. Spiritual skyscrapers may occasionally be encountered by the wayside, even by worldly men like this policeman. We thank the officer for relieving our tedium with his marvelous story. He was probably intimating that he was more fortunate than we. He had met an illumined saint without effort. Our earnest search had not at the feet of a master, but in a coarse police station. So they were Ramyas, and yet in our captivity so far, I told Amar I felt doubly impelled to seek freedom. Let us slip away when opportunity offers. We can go on foot to holy Rishikesh, I smiled encouragingly. But my companion had turned pessimist as soon as the stalwart prop of our money had been taken from us. Over to you, Monica ji. हाँ जी, थैंक यू शीतल जी। जी। अमर और इनको बहुत खेद हुआ कि इनको तो उनके दर्शन हो गए, और हम इस आध्यात्मिक जगत के मतलब इतने अचूक दर्शन से छूट गए। इन दोनों बच्चों को इस चीज का बहुत अफसोस हुआ, और ये कंफर्म भी हो गया कि जरूर वहां पे कोई ऐसी दैवीय संपदा है जिसका अक्षय भंडार है जो हमें नहीं मिला है, या जिसकी खोज में हम घर से निकले हैं। और अपनी इस अद्भुत कहानी से जो पुलिस वाला था, उनका समय बिताने के लिए उन्होंने उनका धन्यवाद किया, जो कि इन्हें सूचित कर रहा था कि मैं देखो तुमसे अधिक भाग्यवान हूँ, तुम तो घर से निकले हो, खोज में निकले हो, और अभी तो पहुंचे भी नहीं हो, और मैंने तो उस आत्मज्ञानी संत के दर्शन भी कर लिए हैं। ऐसा इनको महसूस हुआ कि जैसे वो इनको ये सूचित कर रहा है। और जबकि ये लोग जिस सिद्ध पुरुष की खोज करना चाह रहे थे, उस तक तो पहुंचना दूर की बात है। इनको लग रहा था कि निकले तो हम थे यात्रा पर इन संतों की खोज में, और इनको तो संत के दर्शन भी हो गए, और हम पुलिस स्टेशन में पहुंच गए। मतलब हमें ये सब अभी नहीं मिला, ऐसा वो विचार करने लगे। हिमालय के कितने निकट हैं, फिर भी कितने बंधनों में जकड़े हुए हैं। और अब उन्होंने अमर से कहा कि अब तो ये सब सुनने के बाद मेरा जो एक मेरे मन में जो एक इच्छा है
वो और भी प्रबल हो गई है कि मुझे हिमालय पर जाना है और मुझे गुरु के संतों के दर्शन करने हैं। ऐसा उनका जो विश्वास था वो दृढ़ होता हुआ नजर आ रहा था। और उन्होंने कहा कि चलो जैसे ही मौका मिलता है हम यहाँ से खिसक जाते हैं, यानी कि हम यहाँ से भाग जाते हैं। और जोश जोश में उनको लग रहा था कि ऋषिकेश तक तो हम पैदल ही चले जाएंगे, ऋषिकेश कौन सा दूर है। प्रोत्साहन देने के लिए अमर भी थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, पर जो मेरा मित्र था वो बहुत निराशावादी हो रहा था। क्यों? क्योंकि उनके पास जो पैसे थे वो सारे पैसे उस पुलिस वाले ने छीन लिए थे। अब उनके पास कोई पैसा नहीं था इस टाइम। तो अगर वो जाना भी चाहते हैं, उनसे बचकर भागना भी चाहते हैं, तो उनके पास कोई धन नहीं है। तो ये सब चीजें उनको कहीं ना कहीं निराश कर रही थी। जी शीतल। जी, थैंक यू। If we started a trek over such dangerous jungle land, we should finish not in the city of saints, but in the stomach of tigers. Ananta and Amar's brother arrived after 3 days. Amar greeted his relative with affectionate relief. I was unreconciled. Ananta got no more from me than a severe upbraiding. I understand how you feel, my brother spoke soothingly. All I ask of you is to accompany me to Banaras to meet a certain sage and go on to Calcutta to visit our grieving father for a few days. Then you may resume your search here for a master. Amar entered the conversation at this point to disclaim any intention of returning to Haridwar with me. He was enjoying the familial warmth, but I knew I would never abandon the quest for my guru. Our party entrained for Banaras. There I had a singular and instant response to a prayer. Over to you, Monica ji. जी, कहानी यहाँ पे हल्का सा वापस ट्विस्ट ले रही है और वो वापस उसी जगह में पहुंचते दिख रहे हैं। ऐसा हो पाएगा कि नहीं, अभी आगे देखते हैं जहां से वो स्टार्ट हुए थे। इन दोनों के भाई अनंत और अमर के भाई जो थे, अनंत और अमर के भाई, ये 3 दिन के बाद वहां पर पहुंचे। और अमर ने तो बहुत ही आनंद के साथ अपने भाई का स्वागत किया, पर मुझे अनंत के साथ ऐसा कुछ अफेक्शन महसूस नहीं हो रहा था कि मैं बहुत उत्साह से उनका स्वागत करूं, बल्कि उन्होंने थोड़ा सा उल्हाने यानी कि शिकायत की तरह ही अपने भाई अनंत से मुलाकात की, जबकि अमर ने इससे उल्टा किया था। तभी अनंत बोला कि मैं तुम्हारी भावना समझता हूँ, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है वो भी मैं जानता हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि एक बार मेरे साथ बनारस चलो। वहां पर मैंने एक विशिष्ट संत से बात कर रखी है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे मन में जो बार बार भावना आती है, सन्यासी बनना है, सन्यासी बनना है, घर से भागना है, हिमालय जाना है, गुरु से मिलना है, ये सब तुम्हारे मन में जो चल रहा है ना, इन सब के लिए मैंने बनारस में एक विशिष्ट संत से बात की हुई है। और अपने दुखी पिताजी से भी कोलकाता मिलने चले जाओ, थोड़े दिन उनसे भी मिल लो, उसके बाद अपने गुरु की खोज में आ जाना दोबारा। अब वो उनको गोली दे रहे हैं, यानी कि उनको बहला रहे हैं, ताकि वो एक बार यहाँ से चले जाएं, स्टेशन से चले जाएं और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाएं। तो ही इज कुकिंग अ स्टोरी। नो डाउट उन्होंने विशेष संत से बात की हुई थी और उनको वो वहां लेकर भी गए, पर वो उनको भावनात्मक प्रेशर्स भी दे रहे हैं। फादर का नाम ले रहे हैं बीच बीच में, विशिष्ट संत का भी नाम ले रहे हैं कि तुझे गुरु के ही पास जाना है ना, चल मैं तुझे एक संत से मिलाता हूँ। भाई चलो, संत के नाम पे इसको लगेगा कि मिल लेता हूँ, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अमर एकदम से बीच में आ गया और उसने कहा कि भाई देख, मेरा तो वापस आने का कोई इरादा नहीं है। यानी कि अमर ने कन्नी काट ली कि भाई से मिलने के बाद उसको स्नेह फूट गया। उसने बोला कि मैं तो वापस नहीं आऊंगा, और पारिवारिक स्नेह सुधा का उपभोग कर रहा था, यानी कि उसको अपने भाई से मिलकर बहुत आनंद आ रहा था। और मुझे विश्वास था कि मैं अब अपने गुरु की खोज का परित्याग तो नहीं करूंगा। अब देखो, जो मुकुंद है ये बहुत ज्यादा एडमेंट हुए पड़े हैं इस चीज के लिए कि मैं तो अपने गुरु की खोज का त्याग नहीं करूंगा। तुझे अपने परिवार से स्नेह है, तेरा जो भी विचार है तू देख, मैं तो नहीं करूंगा। बट भाई की बात मानते हुए वो बनारस के लिए रेलगाड़ी पर सवार हो गए। और अब देखिए आगे क्या होता है। जी शीतल। Thank you. So, a clever scheme had been prearranged by Ananta. Before seeing me in Haridwar, he had stopped in Banaras to ask a scriptural authority to interview me later. The Pandit and his son also had promised Ananta that they would attempt to dissuade me from becoming a sannyasi.
Ananta took me to their home. The son, a young man of ebullient manner, greeted me in the courtyard. He engaged me in a lengthy philosophic discourse. Professing to have a clairvoyant knowledge of my future, he discountenanced my idea of being a monk. You will meet continual misfortune and be unable to find God if you insist on deserting your ordinary responsibilities. You cannot work out your past karma without worldly experiences. Over to you, Monica ji. जी। अब अनंत ने क्या किया हुआ था, उसने पहले ही बड़ी कुशलता से एक प्लान बनाया हुआ था। यहाँ आने से पहले वे बनारस गए और वहां पर उन्होंने एक शास्त्र पंडित और से मिलकर, और ये एक प्लानिंग थी कि तुम उपदेश दोगे उसे, मैं मुकुंद को लेकर आऊंगा, तुम उसको उपदेश दोगे, और पंडित के साथ उनके पुत्र भी थे। और ये जो सन्यासी चढ़ने का, जैसे कि एक लेमन लैंग्वेज में यूज किया जाता है कि सन्यासी बनने का भूत उनके सिर पर सवार है, उससे उनको विरत करने का तुम दोनों प्रयास करोगे। ऐसा उन्होंने अनंत को वचन दिया कि तुम उनको लेकर आओ, हम ये काम कर देंगे, तुम चिंता मत करो, ऐसा आश्वासन दिया। तो अनंत दा मुझे उनके घर ले गए, और जैसे ही वो गए तो उनका जो युवा बेटा था पंडित जी का, बहुत ही एक्साइटेड होकर आंगन में उसने उनका वेलकम किया, और बहुत ही दार्शनिक से तर्क वितर्क में उनको उलझा दिया कि मुझे अपनी अंतर्दृष्टि से नजर आ रहा है, मैं भविष्य देख सकता हूँ, और मैं भविष्य में देख रहा हूँ कि तुम सन्यासी तो नहीं बन पाओगे। मतलब ऐसा एक उसने प्रपंच सा रचा, या तर्क वितर्क का एक उसने शब्दों का एक जाल सा बुना, जिसमें उसने कहा कि मैं अंतर्दृष्टि से देख पा रहा हूँ तुम्हारे भविष्य को, तो तुम तो सन्यासी नहीं बन पा रहे हो। असहमति प्रकट की उन्होंने कि तुम्हारा सन्यासी बनने जैसा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। और अगर तुम अपने जो सामान्य से उत्तरदायित्व हैं, जैसे पिता की सेवा करना, भाई के साथ प्रेम संबंध बना के रखना, या विवाह करना, यही होते हैं पारिवारिक से उत्तरदायित्व साधारण। तो अगर ये तुम नहीं करोगे तो तुम दुर्भाग्य का शिकार बन जाओगे, और ईश्वर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि सांसारिक अनुभव के बिना तुम्हारे जो पूर्व कर्म है वो समाप्त नहीं हो सकते। अब देखिए, ये एक शब्द जाल बुना जा रहा है। जब तक संसारिक कर्म पूरे नहीं करोगे, पिता की सेवा नहीं करोगे, साधारण उत्तरदायित्व यही होते हैं, पुत्र का उत्तरदायित्व पूरा करो, पति का उत्तरदायित्व पूरा करो, ये सब उत्तरदायित्व होते हैं। तो ये सब नहीं करोगे तो तुम्हारे पूर्व कर्म समाप्त नहीं होंगे। जी शीतल। Immortal words from the Bhagavad Gita rose to my lips in reply. Even he, with the worst of karma, who ceaselessly meditates on me, quickly loses the effects of his past bad actions. Becoming a high-souled being, he soon attains perennial peace. Know this for certain, the devotee who puts his trust in me never perishes. But the forceful prognostications of the young man had slightly shaken my confidence. With all the fervor of my heart, I prayed silently to God. Please solve my bewilderment and answer me right here and now, if thou dost desire me to lead the life of a renunciant or a worldly man. I noticed a sadhu of noble countenance standing just outside the compound of the Pandit's house. Evidently, he had overheard the spirited conversation between the self-styled clairvoyant me and for the stranger called me to his side. I felt a tremendous power flowing from his calm eyes. Over to you, Monica ji. अब जब उन्होंने उनको ये कहा, इतनी सारी बातें बोली, संसारिक इसका, कर्मों का, साधारण उत्तरदायित्वों का, इतने भारी भरकम शब्द, जब उन्होंने उसे फंसाया मुकुंद को, तो अब मुकुंद के होठों पर भगवत गीता के सनातन शब्द बुदबुदाने लगे। वो यानी कि रिकॉल किया उन्होंने, इनकी बातें सुनने के बाद उन्होंने रिकॉल किया इन सब बातों को, कि यदि कोई बहुत दुराचारी व्यक्ति भी मुझ में प्रेम दिखाता है, मुझे अनन्य भाव से भजता है, बहुत दुराचारी, अतिशय मतलब बहुत दुराचारी व्यक्ति भी मुझे अगर अनन्य भाव से भजता है, तो उसके पिछले दुष्कर्मों का प्रभाव शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। महात्मा बनकर वह शीघ्र शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, तुम निश्चित रूप से जान लो
जो भक्त मुझ में विश्वास रखता है उसका कभी विनाश नहीं होता। ये भगवत गीता के उन्मुक्त शब्द हैं। कोई कितना भी पापी दुराचारी हो, अगर वो मेरा नाम भज लेता है तो फिर वो मेरी प्रोटेक्शन में आ जाता है। फिर मैं उसके कर्म तो नहीं लेता, हाँ मैं उसके साथ साथ चलता हूँ, उसे रास्ता दिखाता हूँ और उसको मार्ग प्रशस्त करता हूँ। ये मेरा काम होता है। तो ये मुकुंद को याद था। ये सब सुनने के बाद मुकुंद के कानों में, मतलब अपने होठों में, वो इन शब्दों को भी रिपीट कर रहे हैं। पर उस युवक ने इतनी दृढ़ता से ये भविष्यवाणी की थी कि मुकुंद का फेथ भी थोड़ा सा डामाडोल हो गया। और उनको भी लगा कि उन्होंने मनी मन ना पूरी भक्ति से, मतलब ईश्वर कोई एक एक प्रार्थना की स्ट्रॉन्ग सी। जी शीतल। पढ़िए आगे। हैं जी। आगे पढ़िए, ये हमने पढ़ लिया एक पैराग्राफ। जी। अभी यहीं और इसी क्षण उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि अभी और इसी क्षण मुझे उत्तर चाहिए। जब हम डायरेक्ट गॉड से कनेक्ट होते हैं, एकदम 1-to-1 टॉक करते हैं, बिना फियर, बिना डर, बिना किसी प्रपंच के, एकदम 1-to-1 टॉक, प्रभु जवाब देते हैं। उन्होंने भी प्रभु को कहा, मुझे उत्तर दो, तुम क्या चाहते हो, मैं सन्यासी बनूं या मैं संसारी मनुष्य बनूं। तभी उन्होंने क्या देखा कि एक पंडित जी घर की चार दीवारी के निकट ही बाहर खड़े हुए हैं। आधे शरीर पर उन्होंने वस्त्र पहने हुए हैं, साधु खड़े हैं। और उन्होंने मेरी और जो दिव्य दृष्टा स्वघोषित जो कह रहे थे, भविष्यवाणी कर रहे थे, उनके बारे में, और जो मेरे साथ उनका वार्तालाप हुआ था, उन्होंने सुन लिया था, दोनों में जो बातचीत चल रही थी। और उन्होंने अपरिचित होते हुए भी मुझे अपने पास बुलाया। उन्होंने इशारा किया कि मेरे पास आओ। और अपने प्रशांत नेत्रों से एक प्रचंड शक्ति को मैंने अनुभव किया कि उनके द्वारा एक प्रचंड शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। क्योंकि उन्होंने प्रभु से पूछा था कि क्या मैं संसारिक परिवेश में जाऊं या मैं सन्यासी बनूं। इसके उत्तर में एक साधु बाहर खड़े हैं जो ये दावा कर रहे हैं, ऐसा ऐसा प्रत्यक्ष में बता रहे हैं कि उन्होंने इन दोनों के वार्तालाप को सुन लिया है। और इशारे से उन्होंने मुकुंद को अपने पास बुलाया और एक प्रचंड शक्ति उन्होंने महसूस की। ये बड़ा दिव्य अनुभव है जो अभी इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा है। जी शीतल। Thank you. Son, don't listen to that ignoramus. In response to your prayer, the Lord tells me to assure you that your sole path in this life is that of renunciant. With astonishment as well as gratitude, I smiled happily at this decisive message. Come away from that man, the ignoramus was calling me from the courtyard. My saintly guide raised his hand in blessing and slowly departed. That sadhu is just as crazy as you are. It was the hoary-headed pandit who made this charming observation. He and his son were gazing at me lugubriously. I have heard that he too has left his home in a vague search for God. I turned away. To Ananta, I remarked that I would not engage in further discussion with our host. My discouraged brother agreed to an immediate departure. We soon entrained for Calcutta. Over to you, Monica ji. जी। अब उन्होंने क्या बोला कि जब वो उनकी बातें सुन रहे थे तो वत्स, उस मूड की बातें मत सुनो। तुम्हारी प्रार्थना के प्रत्युत्तर में ईश्वर ने मुझे तुम्हें आश्वासन देने का निर्देश दे रहे हैं और तुम्हारे जीवन का मार्ग संन्यास ही है। देखिए, साधु जी ने बिल्कुल क्लियर उनको एक निर्देश दे दिया कि तुम्हारे जीवन का जो सही मार्ग है या अंतिम लक्ष्य है वो संन्यास ही है। और बहुत हैरानी और बहुत प्रेम के साथ मैं इस निर्णायक संदेश पर प्रसन्नता से भर गया। उन्होंने यही दावा किया था प्रभु से कि मुझे मार्ग प्रशस्त करो, और साधु के माध्यम से प्रभु ने उन्हें मार्ग प्रशस्त किया और सन्यासी के मार्ग के लिए उनका चुनाव कर लिया गया। और तभी अंदर से आवाज आई कि उस आदमी से दूर होकर इधर आ जाओ। आंगन में जो जो जिनके लिए मूड शब्द का प्रयोग किया गया था वो उन्हें बुला रहे थे। और मेरे उस मार्गदर्शक ने आशीर्वाद मुद्रा में हाथ उठाया, जो सन्यासी थे, और धीरे धीरे वो वहां से चले गए। तभी अंदर से आवाज आई और सफेद
श्वेत केशधारी पंडित जी, केश उन्होंने रखे हुए थे और सफेद उन्होंने वस्त्र पहने हुए थे। उन्होंने क्या बोला कि ये साधु भी तुम्हारे समान पागल ही है, ये जो बात कर रहे हैं ये भी पागल ही हैं, और ये जो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। और दोनों ही, वो और उनके पुत्र दोनों ही बहुत ही शोचनीय, मतलब कहते हैं ना तरस खाने वाली दृष्टि से वो इनको, मुकुंद को देख रहे थे। और मैंने सुना है कि उसने भी ईश्वर की संदिग्ध खोज के लिए अपना घर बार छोड़, अब वो व्यंग्य कर रहे हैं इनके ऊपर कि जिस सन्यासी से तुम बात कर रहे थे, मैंने सुना है ये भी घर बार छोड़, क्योंकि घर बार छोड़ना, एक सन्यासी बनना सामान्य नहीं है। हम भी कभी कभी, जब हम यमुनानगर में रहा करते थे, तो वहां पे एक व्यक्ति थे हमारे पड़ोस में ही, बहुत सुंदर सा एक युवक था, 23-24 साल का, और वो सन्यासी बन गया था। तो जब मैं यमुनानगर गई विवाह के बाद, तो मेरे कान में यही पड़ा कि इनका एक पुत्र है 24-25 साल का, और उसकी मति भ्रष्ट हो गई और वो सन्यासी बन गया। तो मैंने यही सुना 15 साल तक कि वो सन्यासी बन गया, मतलब मति भ्रष्ट हो गई। तो घर बार छोड़कर वो ओशो के आश्रम में या कहीं रहने के लिए चले गए थे। तो ये एक सामान्य सी स्टेटमेंट है कि कोई जब सन्यासी बनने की बात करता है तो यही बोला जाता है कि इसकी संगति छुड़ाओ, ये पता नहीं किन लोगों के पास उठने बैठने लग गया है, ये गलत संगति में पड़ गया है। मतलब इसको सामान्य या अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि एक व्यक्ति घर परिवार बच्चे माता पिता सब छोड़ के जा रहा है, तो देखो आसान तो नहीं है। तो इसीलिए जो पंडित जी थे या जो उनके पुत्र थे, वो भी बोले कि जिस व्यक्ति से तुम बात कर रहे हो वो भी घर बार छोड़कर ऐसे ही, मतलब उसने भी अपना घर बार छोड़ दिया है ईश्वर के चक्कर में या ईश्वर की संदिग्ध खोज में। जी जी शीतल। Thank you. Mr. Detective, how did you discover I had fled with two companions? I vented my lively curiosity to Ananta during our homeward journey. He smiled mischievously. At your school, I found that Amar had left his classroom and had not returned. I went to his home the next morning and unearthed a marked timetable. Amar's father was just leaving by carriage and was talking to the coachman. My son will not ride with me to his school this morning. He has disappeared, the father moaned. I heard from a brother coachman that your son and two others, dressed in European suits, boarded the train at Howrah station, the man stated. They made a present of their leather shoes to the cab driver. Thus, I had three clues: the timetable, the trio of boys, and the English clothing. I was listening to Ananta's discourses with mingled mirth and vexation. Our generosity to the coachman had been slightly misplaced. Of course, I rushed to send telegrams to station officials in all the cities that Amar had underlined in the timetable. He had checked Bareilly, so I wired your friend Dwarka there. After inquiries in our Calcutta neighborhood, I learned that cousin Jatinda had been absent one night but had arrived home the following morning in the European garb. I sought him out and invited him to dinner. He accepted, quite disarmed by my friendly manner. On the way, I led him unsuspectingly to a police station. He was surrounded by several officers whom I had previously selected for their ferocious appearance. Under their formidable gaze, Jatinda agreed to account for his mysterious conduct. Over to you, Monica ji. जी यहाँ पर खुलासा हो रहा है कि अनंत दा कैसे पहुंचे मुकुंद तक या अमर तक। बहुत ही खूबसूरत तरीके से खुलासा हुआ। जब मैंने मुंह फेर लिया और अनंत दा से कहा कि अब यहाँ से चल पड़ो, मैं नहीं उलझना चाहता इन लोगों से, और जो हतोत्साहित भाई, यानी कि मतलब उसको लगा कि मैंने इनका अरेंजमेंट किया कि वो इसको समझा पाएंगे, बट यहाँ भी कुछ नहीं हुआ, यहाँ भी कोई हल नहीं निकला, और वो कोलकाता जाने वाली गाड़ी पर सवार हो गए। अब गाड़ी में दोनों जा रहे हैं। अब मुकुंद पूछ रहे हैं, श्रीमान गुप्तचर जी, यानी कि अपने ब्रदर के लिए वो इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिटेक्टिव जी, आप हमें बताइए कि आपको कैसे पता चला कि मैं दो लोगों के साथ भागा हूं। ऐसा डाउट भी बीच में मुकुंद ने अमर को कहा था कि तुम अपने घर से वो टाइम टेबल उठा लाते
जिसके ऊपर हमने प्लानिंग की थी, पर अमर गलती से वो घर छोड़ आया था। ऐसा डाउट बीच में स्टोरी जब हमने ऊपर पढ़ी है तब मुकुंद को हुआ था। पर अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने अपने भाई से उन्हें डिटेक्टिव कह के बुलाया, प्रश्न पूछा, तो वो बड़े शरारत भरे ढंग से मुस्कुराए। अब वो क्या खुलासा कर रहे हैं कि तुम्हारे स्कूल से मुझे पता चला कि अमर अपनी क्लास से बाहर गया था और फिर वापस लौट कर नहीं आया। अगले दिन जब वे उसके घर गए तो वहां पर उन्होंने निशान लगा हुआ टाइम टेबल देखा, वहां पड़ा हुआ था, और अमर के पिता घोड़ा गाड़ी से जा रहे थे और कोचवान से बातें कर रहे थे कि आज उनका बेटा स्कूल नहीं जाएगा, गाड़ी में उनके साथ, यानी कि जो घोड़ा गाड़ी है उसमें नहीं जाएगा। और बड़े दुखी स्वर में उन्होंने कहा कि उनका बेटा गायब हो गया है। अब ये लाइन उन्होंने सुनी। मैंने एक साथी कोचवान से सुना है कि अब वो बता रहा है उनको कि आपका बेटा 2 अन्य लड़कों के साथ हावड़ा स्टेशन पर एक गाड़ी में चला है और उसने यूरोपियन पोशाक पहन रखी है और चमड़े के जूते उसने कोचवान को दे दिए हैं। अब इस प्रकार 3 सूत्र उन्हें मिल गए थे, एक टाइम टेबल, एक ये 3 लड़कों की मंडली है और ये एक अंग्रेजी वेश में है। देखो अनंत कितनी माइन्यूटली अपने भाई को सन्यासी ना बनने देने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है। देखो कितने मौके आए, वो बार बार उसको पकड़ लाता है। कहीं ना कहीं अभी मैंने इस बारे में बात की थी, ये सामान्य नहीं है और ये आसान भी नहीं है। परिवार वालों के लिए भी आसान नहीं होता कि उनके घर का कोई व्यक्ति सदा के लिए घर छोड़कर चला जाए। तो शायद अनंत इसी प्रेशर में थे या इसी भाव में थे जो ये सब करते थे। और अनंत दा के जो रहस्य उद्घाटन से मैं हंसी और खीज दोनों उनको ही वॉज फीलिंग बोथ। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ खीजूं या मुझे हंसी आ रही थी कि ये गलतियां वो करके आए थे। और फिर ये स्वाभाविक था। और मैंने जब अमर द्वारा टाइम टेबल में निशान लगाए जाने और शहरों के रेलवे अधिकारियों को तत्काल तार भेज दिए, उसी के अकॉर्डिंग जो उन्होंने टाइम टेबल में प्लानिंग की हुई थी ना कि हम पहले यहाँ रुकेंगे, फिर यहाँ रुकेंगे, फिर ये करेंगे, वो करेंगे, वो सारा टाइम टेबल, इतने बजे यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पहुंचेंगे, उसके हिसाब से वो जो तार थे वो स्टेशन पे पहुंचे थे। हमने देखा था ना, वो जिस भी स्टेशन पे उतरे पहले पे भी पुलिस वाला तार लेकर आया था, दूसरे वाले ने तो पकड़ के ही बिठा लिया था। ये सब इसीलिए हुआ था। उसने बरेली पर भी निशान लगाया था, इसलिए मैंने वहां तुम्हारे दोस्त द्वारका को तार भेज दिया था। वहां उनको द्वारका मिला था, उसने रोकने की कोशिश की पर ये रुके नहीं। कोलकाता में अपने पड़ोस में पूछताछ करने पर पता चला कि जो जतिंदा हैं वो भी एक रात के लिए गायब हुए थे। देखो कोलकाता में पड़ोस में पूछा तो वहां से भी जतिंदा एक दिन के लिए वहां से गायब हुए थे और जतिंदा भी इनके साथ थे। पर सुबह अगले ही दिन जतिंदा ने बीच में बोला था। अब हमें पता चल रहा है कि जतिंदा वापस क्यों आए थे। शायद जतिंदा का प्लान चेंज हो गया था। उन्होंने कहा था ना, सब अपने अपने पैसे बांट लो और अपनी अपनी टिकट अपने पास रखो, और फिर वो स्टेशन से गायब हो गए। अभी तक हमें कंफ्यूजन थी वो कहाँ गए, तो वो घर वापस आ गए थे। क्योंकि ये आसान नहीं है, मैंने उन्हें खोजा और भोजन पर, अब उन्होंने जतिंदा को भोजन पर आमंत्रित किया और मेरे मैत्रीपूर्ण व्यवहार से उन्होंने निमंत्रण भी स्वीकार किया। और रास्ते में वो उनको संदेह रहित, मतलब उनको डाउट ना हो उस ढंग से उन्हें पुलिस स्टेशन पर ले गए। मतलब बुलाया तो भोजन के लिए, प्रेम से बुलाया, वो आ भी गए और रास्ते में बात करते करते उनको वो पुलिस स्टेशन ले गए और वहां पर बहुत सारे पुलिस अधिकारियों ने उन्हें घेर लिया। और जिन्हें मैंने उनकी डरावनी सूरत के कारण पहले ही चुन रखा था, यानी कि उन्होंने ऐसे पुलिस वाले वहां चुन रखे थे जिनके चेहरे पर थोड़ा सा, जिनको देख के जतिंदा को भय हो जाता। और उनकी डरावनी सूरत के आगे जो जतिंदा थे वो स्पष्टीकरण के लिए तैयार हो गए, सब बताने के लिए तैयार हो गए कि हाँ वहां पर क्या क्या हुआ था। जी शीतल। Wonderful. I started with the Himalayas in a buoyant spiritual mood, he explained. Inspiration filled me at the prospect of meeting the masters. But as soon as Mukunda said, during our ecstasies in the Himalayan caves, tigers will be spellbound and sit around us like tame pussies, my spirits froze. Beads of perspiration formed on my brow. What then, I thought, if the vicious nature of the tigers be not changed through the power of our spiritual trance, shall they treat us with the kindness of house cats? In my mind's eye, I already saw myself the compulsory inmate of some tiger's stomach, entering there not at once with the whole body, but by installments of its several parts.
My anger at Jatinda's vanishment evaporated in laughter. The hilarious explanation on the train was worth all the anguish he had caused me. I must confess to a slight fleeting of satisfaction. Jatinda too had not escaped an encounter with the police. Over to you, Monica ji. या यहाँ पर चीजें थोड़ी सी हल्की फुल्की, थोड़ा हंसी का मिक्स से भाव यहाँ पर आ रहे हैं। और आध्यात्मिक भावना में उत्साह से मैं हिमालय की ओर चल पड़ा। रहस्यमय व्यवहार का स्पष्टीकरण करने के लिए जतिंदा तैयार हो गए पुलिस वालों के सामने, और उन्होंने उन्हें सब बता दिया। आध्यात्मिक भावना में उत्साह में मैं हिमालय की ओर चल तो पड़ा, बट सिद्ध महात्माओं के दर्शनों के विचार ने भी उनको प्रेरणा से भर दिया कि वाओ, इट वुड बी वेरी फैसिनेटिंग, वेरी एक्साइटेड। हम लोग जाएंगे और हमें वहां पर गुफाएं मिलेंगी और उसमें हम समाधि लगाएंगे, और जो बाघ हैं, जो शेर हैं, वो भी हमारी समाधि के हमारी समाधि से जो ग्रेस हमारे अंदर एक प्रकाश हमारे अंदर से निकलेगा, उससे वो लोग हमारे पास आ जाएंगे, वशीभूत होकर, हमारे बस में होकर हमारे पास आ जाएंगे, बैठेंगे। और बट उनका सारा जोश कब ठंडा हो गया और माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। बोले तब क्या होगा यदि हमारे योग बल से जो शेर और बाघ हमारे पास आए हैं, हम ऐसा सोच रहे हैं कि वो हमारे पास अगर बिल्लियों जैसे आचरण करेंगे, पर अगर उन्होंने बिल्लियों जैसा आचरण नहीं किया, हमारी समाधि में कोई कमी रह गई, हम उस तरह से अपनी मेडिटेशन नहीं कर पाए, तो पता लगा कि किसी बाघ ने हमें पूरा के पूरा निगल लिया। और वहां उनको ये लग रहा था कि जब हम बाघ के पेट में जाएंगे तो हमारा शरीर एक साथ नहीं जाएगा उसके पेट में, बल्कि हमारे शरीर के मतलब उनके शरीर के एक एक करके टुकड़े होंगे, छोटे छोटे, और वो किश्तों में उनके शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे। और जतिनदा, अब इनको समझ में आया, अब मुकुंद को समझ में आया कि जतिनदा अदृश्य क्यों हुए थे। वो जो एक छोटी सी चीज थी ना, एक छोटी सी डिस्कशन, ये पहले भी हो चुकी थी कि बाघ आएंगे और वो बिल्लियों जैसे हो जाएंगे और ये सब होगा, ये पहले हो चुकी थी। तो यही बात को उन्होंने रिकॉल किया और उनके मन में भय आ गया कि अगर हम इतने संपन्न और समृद्ध नहीं हो पाए उस मेडिटेशन में तो क्या होगा, फिर तो बाघ उनको खा भी सकता है। तो अब ये बातें सुन के मुकुंद को हंसी आ रही है, और अब उनको समझ आया कि जतिनदा जो थे वो क्यों अदृश्य हुए थे। उनको थोड़ा उन क्यूट भी लग रहा है वो उनको। जो उनका गुस्सा था वो कहीं ना कहीं रफू चक्कर हो गया और हंसी में बदल गया कि ही वॉज राइट एट हिज प्लेस। उनको लग रहा था कि शायद ऐसा हो जाए तो वो अपनी जगह सही है, बट उन्होंने जो इनको संताप और दुख दिया था, परेशानी दी थी, वो हंसी में लोटपोट होकर, मुकुंद जो थे वो हंसी में लोटपोट हुए जा रहे थे ये वाला स्पष्टीकरण सुनने के बाद। तो उन्होंने बोला कि ये चुकता हो चुका था और मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, और मुझे संतोष भी हुआ कि जतिनदा भी पुलिस की खातिरदारी से बच नहीं सके। बोला हम तो नहीं बचे, उन्हें भी पुलिस ने पकड़ ही लिया था। तो जतिनदा जो वहां से निकल गए थे, वो भी घूम फिर के पुलिस के पास उनको भी दर्शन देने ही पड़े और पुलिस का आमना सामना करना पड़ा। जी, ये अगला पैरा भी पढ़ लिया आपने शायद, अनंतदा वाला। नहीं, ये नहीं पढ़ा, और अभी हम यहीं पे आज विराम लगाते हैं, अगर जी सही रहे, क्योंकि टाइम हो गया है। सो हम 5 मिनट रिफ्लेक्शन टाइम भी लेंगे। सो अभी तक की बहुत ही मजेदार स्टोरी आगे बढ़ी है। हम लोग सब अभी 7:41 हो रहा है, थोड़ी देर, क्योंकि अभी फ्रेश फ्रेश सुना है सारी स्टोरी को, रिकॉल करते हैं और लिखते हैं 5 मिनट साइलेंट टाइम में, जिसमें हम आपस में बात नहीं करने वाले कि हमने आज की स्टोरी से अपनी क्या इनसाइट्स निकाली, हमारी क्या रिफ्लेक्शंस है, लर्निंग्स है, और उसके बाद हम डिस्कशंस भी करेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन आंसर हो तो वो भी लेंगे। तो शार टाइम का ट्रैक रखने वाली हैं, और हम 5 मिनट के लिए अब सभी मौन होने वाले हैं। सो ऑल ऑफ अस विल बी क्वाइट फॉर द नेक्स्ट 5 minutes, बिकॉज वील राइट डाउन आवर इनसाइट्स एंड रिफ्लेक्शंस एंड वील कम बैक एंड रिज्यूम एंड डिस्कस अगेन लेटर. So let's write down. Writing is really important.
Okay, time up. Thank you, Sheetal. Thank you, Monica ji, for the lovely reading. It's so good to hear. मतलब मेरे को एक अच्छा एस्पेक्ट ये लगता है कि डबल रीडिंग होती है, तो इंग्लिश में भी समझ आता है, फिर हिंदी में एक अलग सा पर्सपेक्टिव, और जैसे मोनिका जी एक्सप्लेन करती हैं, so it's so good. And I really hope that people have utilized this silent time and have reflected and written their thoughts. So I would like to open the room for everyone to share. Those who have written, please do share. Those who have even not written but have something to share, please do come up and share your thoughts on the same. हाँ, मैं शेयर कर लूँ थोड़े से थॉट। I think let's share our views a little later, and let's invite people to share their views, because every time we share and they are not able to share, or they don't, they feel That's just what shy. that's what I said. Like Yeah. this room is open for everyone Yeah. to share. I think Sanjeev ji is हाँ also here. I think he would like to put some light on that. Yeah, So we- Bhumika ji is also there, and I think Sanjeev ji हाँ came up. May हाँ I? जी, मैं थोड़ा शेयर करना चाहूंगी कि Sanjeev ji, जब after Bhumika ji, you will Oh, share. okay, I do. Thank you. हाँ हाँ जी, मैं ये शेयर करना चाहूंगी जब वो उसमें स्टोरी में आया था कि छोटी उम्र में जब कोई बता रहे थे कि छोटी उम्र में कोई अगर साधु सन्यासी की भी राह में जाता है, जैसे गलत राह में जाते हैं वैसे साधु सन्यासी की राह में भी जाता है, तब भी गलत राह मानी जाती है। तो यही वाकया ठीक मेरे घर में हुआ है। Right. ये वाकया मेरी अपनी बेटी श्री श्री रविशंकर जी के उसमें चली गई, काफी पूजा पाठ करने लगी एकदम से। Hmm. तो अब तो हमें समझ में आ गया पर वाकयात ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सच में यहाँ पे मैं सीख रही हूँ, ये लर्निंग है मेरी। Mhm. मतलब मैंने खुद ने एक्सेप्ट करना मेरे को मुश्किल हो गया था कि मेरी बेटी ने मतलब एक आश्रम में जाती है और मतलब मेडिटेट करती है अपने को। आपने कुछ भी उसको अच्छा भी हुआ कहा था। होगा। हम्म। आपने भी सोचा होगा बेवकूफ है, ये तो गलत राह पे चल पड़ी है। हाँ कि मतलब कॉर्पोरेट जगत की लड़की थी मेरी लड़की, इंजीनियरिंग लाइन की थी, और वो एकदम से उसने वो छोड़ के योगा वोगा सब अपने अपने अपना लिया था, पूजा पाठ अपना लिया था। तो मतलब हाँ, मतलब मेरे को भी ऐसा लगा था आर यू ये हैप्पी कितना नाउ? मुझे। क्या आप उसके इस डिसीजन से अब खुश हो? हाँ नहीं, अब तो हमने उसे एडजस्ट कर लिया, पर वास्तव में ये मेरी अपनी स्टोरी लगी मुझे इस समय। Right. Good. Good. I'm sure everybody has got personal experiences. Thank you, Bhumika ji. Yes, Sanjeev ji. Yeah, there are two points that I would like to highlight actually from today's reading. And these are again the thoughts which may not directly synchronize, say, hubahu jaise कहते हैं ना, that may not be the case, but then these are definitely out of today's readings, right? First, I find is that when there is sincerity of cause or request, then all the hardships which are uh, required to be encountered actually vanish. And that is what we actually saw in that train journey of this intrepid crew of three. How those shoes were gone, and then everything, and how they actually then ended up, say, in the policeman's hands, and ultimately everybody took no notice of it, and they were just into God sent maybe adventure trip, and how things subsided on their own, and the kind of feeling which had to be actually sunk into uh, the genuine person's heart, that actually reached the right heart. I'll say that. And the second thing, which I have a personal example also, rather, I have been like, I got this kind of a thing in my life also. So that is quite dear to me. In this, I also believe that we get sucked as per our life path by higher dimensional beings. Like in this case, even those Pandit and his son,
when they said that no, you're not bound to become a saint or an ascetic, but how a God sent person from far with genuine maybe intentions and those feelings, just by looking at him could convince, and then uh, everybody else was also probably uh, like set aside, and the true say seeker was blessed somehow. So I think these are strange ways which are beyond the reach of maybe 3D people. But then when we find that yes, there is a genuine seeker, people maybe from higher realms, from 5D and beyond. They, because it's always from the higher realm people uh, to downwards, right? So in case somebody is actually able to uplift one's energy to that level, those intentions are actually well caught up by those beings, and we in 3D then probably end up saying a miracle is happening, but then those are genuine things which keep happening, and it's very much natural. Yeah, in and anybody actually who's realized it, I'm very sure in this group, since this group is about this only, many would have many experiences, but I would quote just one of mine. Uh, I followed Shri Satya Sai Babaji, and he just looked at me, and thereafter I couldn't have non-veg or liquor throughout my life. And since '93, I'm a teetotaler vegetarian. I would vomit. I had had liquor and non-veg. Rather, I was hardcore non-vegetarian till 23 years of my age. And beyond that, I have never been able to actually taste it. It's not that that urge is actually gone. And there's been so many parties, which the Fauji way of lifestyle, but then there was never ever that urge. So I think there are higher superior souls who actually have the power to actually uh, take you to those say levels of awareness, and maybe take you to that path. That's what all. Thank you. That's right. Thank you so much. Thank you so much, Sanjeev ji, for this lovely share. I completely agree that people like us 3D, who can look through 3D dimensions, but then there are other people, saintly figures, who can have that vision of 5D. And I also heard a story के miracles सच में है, miracles नहीं होता है क्योंकि उनकी vision इतनी strong होती है, beyond they work and proceed beyond physical bodies. तो वो Correct. एनर्जी बेसिस फिजिकल बॉडी और सूक्ष्म शरीर के बेस पे भी सब कुछ चीजें वो कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि लक्कड़ से हाथ डाल दिया, आग से हाथ डाल दिया, इस पे चल, क्योंकि वो फिजिकल के बियॉन्ड वर्क कर रहे होते हैं, एंड दैट्स रियली ट्रू। Precise. Yeah. Yeah, that's it. Yeah. Precisely. You caught on. Yes, I've heard this story earlier. I have a lot of stories to share, but time नहीं होता. Yes, thank you. Thank you, Sanjeev ji. Anyone else who would like to share their reflections, stories, and thoughts? और सब then आप कुछ कहना चाहेंगे? Sapna ji want to. Ashwinder. Yes, Ashwinder, please go ahead. या Come on हेलो screen. हाय हाँ जी मैं ये मुकुंदा जी का पता जस्ट आई वाज थिंकिंग कि ही हैड द वेरी नाइस इंसाइट कि अपनी गलतियों पे जो हंसने की जो लाफ्टर अपने ऊपर जो गलतियां उन्होंने की है उस तरह से क्लोजली ऑब्जर्व करने की और जो उनपे हंसी करने की, तो वो चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी कि ही ऑब्जर्विंग कि कहाँ कहाँ पे उनसे गलतियां हुई, कि कैसे उन्होंने ट्रेस किया उनके ब्रदर ने, एंड फिर जो उनके ब्रदर उन सिचुएशंस मोमेंट्स को पूरी तरह से ऑब्जर्व किया। तो ऑब्जर्वेशन पे मुझे बहुत अच्छी चीज लगी कि उन्होंने किस तरह से हर छोटी सी छोटी चीज को ऑब्जर्वेशन में वो लेके आए। तो आई फाउंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग एंड लेट्स सी आगे क्या होता है। दीज टू थिंग्स आई जो लाफ्टर जो था अपने ऊपर हंसने की जो कला है वो बहुत कम लोगों में होती है, तो ये चीज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी।
lovely. Thank you. Yeah, I would like to add here with Ashwinder ji's views कि जब वो अपना एक्सप्लेन कर रहे थे कि मेरे को उनको फियर हो रहा था कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, तो दैट वाज वंडरफुली, आई मीन द वे ही वाज एक्सप्लेनिंग, जैसे हम कहते हैं वो एनएलपी में यूज करते हैं, व्हाट इफ टेक्निक को यूज करते हैं हम, कि व्हाट इफ कि अगर ऐसा होगा तो वो बिल्कुल ही वर्स्ट सिचुएशन भी अपने दिमाग में इमेजिन कर ली, Yes. और व्हाट इफ अगर ऐसा हो जाता है तो उसके लिए भी इमेजिन कर लिया एंड तो ये आज की आई थिंक आजकल जो ट्रेनिंग सेशंस ट्रेनर्स डिलीवर करते हैं, तो उसमें वो इसी तरह की बात को बता रहे होते हैं कि दोनों ही सिनारियोज को आपने अपने दिमाग में एनविजन किया, बड़ा किया, और आपने किसकी तरफ ज्यादा फोकस किया, तो एनर्जी आपने कहाँ लगाई, दैट्स व्हाट इम्पोर्टेंट इज, द चॉइसेस दे आर गोइंग टू मेक आफ्टर हैविंग दैट फियर इन देयर माइंड, स्टिल दे आर चूजिंग द पॉजिटिव साइड ऑफ इट, कि यस नहीं, मतलब अगर ये हो गया, नहीं हो गया तो ठीक है, देखो अगर होगा तो उसके बाद कितना अच्छा होगा और क्या क्या मिल सकता है हमें, तो आई थिंक दिस इज अ गुड एग्जांपल टू मूव ऑन फर्दर विद दैट पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पॉजिटिविटी. और उन्होंने या ये दैट्स कहा व्हाट आई कि लाइक अबाउट एक लाइक पीस में भी नहीं लेके लैपटॉप. जाएगा टाइगर, किस्तों में लेके जाएगा. वो देवर इमेजिन, मैं देखी थी वो विजुअलाइज भी कर रहे थे कि कैसा होगा. वो फील भी कर रहे थे और वो मतलब विजन भी देख रहे थे, वो विजुअलाइज भी कर रहे थे और फील भी कर रहे थे, और उनको सुन भी रहा था कि ऐसा होगा, ऐसी आवाज आएगी, ऐसा होगा. So that was quite wonderful. They were using all the three That's right. Lovely. yeah, We're missing kinesthetic भी you यूज in कर रहे थे, between, ऑडिटरी भी Sunaina. यूज कर रहे थे, विजुअल भी यूज कर रहे थे, तो We are missing you in yeah. between. Your voice is cracking. Might be my signals are not proper here, might be, so I just leave upon you guys. Yeah, carry on. Yes, thank you, thank you. Your voice is cracking, but I could Yeah. we could make out what you're trying to say. Right. Thank you, lovely. Yes, anyone else before we conclude? Sheetal, would you like to sum up and share? और मेरा टेक अवे ये है कि माया जो है, ये इल्यूजन वर्ल्ड, ये इतना चिपकू है कि आपको जल्दी से छोड़ेगा नहीं. तो उनके लिए अगर उनको पता है कि उनका पाथ एक सेंटली पाथ है और उनको कहीं रिनाउंसिएशन में जाना है या जो भी है, फिर भी उनके लिए कॉन्स्पिरेसी रची गई है, और उस कॉन्स्पिरेसी में एक साधु को ही, एक पंडित को ही इस्तेमाल किया गया है. इसको मैं आज के कलयुग से रिलेट करती हूँ कि कैसा लोगों का डर जो है वो सच है कि किस पे विश्वास करें और किस पे नहीं, किस बाबा पे और साधु पे विश्वास करें या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों ने मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करने के, मतलब मैनिपुलेट करने के लिए इन्हीं को ही जरिया बनाया. तो इनके केस में भी एक पंडित जरिया बना उनका डाउट डालने के लिए, और थोड़ी देर के लिए उन्होंने माना है कि मुझे डर, मैं हिल भी गया था कि यार मैं इसके लिए नहीं बनाऊं. लेकिन फिर जिन्होंने बाहर से दरवाजे से उनकी बातें साइड से सुन ली, उन्होंने जब विश्वास दोबारा डाला कि ये पागल लोग हैं, इनकी बातें मत सुनो, तुम बने ही इसी राह के लिए हो, तो वो कन्विक्शन वापस जगाया उनके अंदर. तो मैं ये याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि अभी हम उस लेवल के तो नहीं, पर एक छोटे से रास्ते पे चले हैं. तो मुझे ऐसी कौन सी बातें याद आ रही हैं जहां लोगों की बातों ने मुझे वापस पुल डाउन करने की कोशिश की होगी कि आर यू मैड, इतने जूम कॉल्स, क्या बुक रीडिंग, शायद इन चीजों को मैं इसमें भी फिट कर पा रही हूँ. लेकिन फिर मुझे लगता है जब हमारी डिटर्मिनेशन होती है ना, एंड व्हेन देयर इज एन इनर कॉलिंग, तो वो एक आयोटा ऑफ डाउट भी अगर आता है तो बहुत प्यार से आप उसे हटा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि कन्विक्शन आपकी कॉलिंग से आ रही है. उनकी कॉलिंग इतनी स्ट्रांग थी कि उनको पता था ये सब बातों को तो मुझे भ्रम में नहीं आना. तो मैं अपने ऊपर ये रिलेट कर पा रही हूँ कि यूनिवर्स टेस्ट तो लेगा, और उस टेस्ट को मुझे ही पास करना है. सो दैट इज माय टेक अवे फ्रॉम टुडे, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस. थैंक यू. Thank you, lovely share. And if there is no one to share, I would like to share my reflections or my thoughts. So before I share, would anyone like to share? You can raise your hands, the virtual hands. All right, I'll go ahead. सो दीज आर जो बड़े मजे की बात है कि जो सेंटली फिगर भी है ना परमहंस योगानंद जी, बड़े अच्छा लगा कि वो भी शरारती या मिस्चिवस थिंग कर उन्होंने भी अपनी लाइफ में की है. बूट पहन लिए, टोपी पहन ली, इंग्लिश मैन बन गए. मतलब नहीं तो ये बड़ा वो लगता है कि यार ये ऐसी हरकतें, तो थोड़ा एक कनेक्टेड सा लगता है कि इवन जो सेंटली फिगर्स हैं दे हैव गॉन थ्रू दिस फेज ऑल्सो, कि उन्होंने भी यही चीजें या इस तरह की सोच भी थी या इस तरह की मिस्चिवस थिंग्स, शरारती नटखट चीजें की हैं. देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ सिंगल फोकस, वन नाइट विजन आपका जो है वो बहुत जरूरी है लाइफ में होना. एंड इफ यू हैव दैट फोकस, distraction doesn't shake your faith.
एंड यू आर अ डिटर्मिन्ड पर्सन अगर आपका फोकस क्लियर है, विजन आपका क्लियर है। तो डिस्ट्रैक्शन जो आएंगी वो आएंगी, आपको शेक नहीं कर पाएंगी, वो आपको छू के निकल जाएंगी। आपको छुएंगी जरूर, आप हिल सकते हो लेकिन आप गिरोगे नहीं, और अगर गिरे भी तो वापस उठ जाओगे। देन थॉट ऑफ फियर डू कम टू एवरीवन। ये बड़ी अच्छी बात थी कि फियर, वो जो बाघ की स्टोरी थी कि डर तो जितना मर्जी कोई सेंटली है, डर तो फिर भी लगता है, तो उनको भी डर लगा था, तो डर लगना एक जायज सी बात है। देन देर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस व्हेन यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। तो कभी भी आप बहुत बड़ा अगर विजन, एक गोल रखते हो, तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, डिस्ट्रैक्शंस आने वाली हैं, वर्ल्डली ऑब्लिगेशंस आने वाली हैं, बहुत कुछ होगा। बट स्टे डिटर्मिन्ड, कंसिस्टेंट एंड हैव दैट बिलीव। तो ये हम वैसे भी सुनते हैं, और इनकी स्टोरी से भी मुझे आज के में ये लगा कि डिस्ट्रैक्शन बहुत आ रही है, उनको आती हैं। कभी भाई पकड़ने आ जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी कैसे पकड़े जाते हैं, बट लगे ही हुए हैं। कभी उनको कोई ऐसे बोल ही देता है पंडित जी कि नहीं तू नहीं बना, तेरे को श्राप लगेगा, तेरे को ऐसे, तेरे को कुछ गलत हो जाएगा, तुम इस चीज के लिए हो। बट अगेन सिंगल फोकस, तो वापस अपने ट्रैक में। ऐसा हम सबके साथ भी होता है। तो इफ वी हैव वन गोल, वी शुड स्टे डिटर्मिन्ड, स्टे फोकस्ड एंड हैव दैट फर्म बिलीव, एंड वी शुड सरेंडर ऑन टू हिम, द गुड लॉर्ड, कि यू टेक केयर ऑफ इट। गोल ये है भाई, तुमने गोल डिसाइड कराया, भगवान देखो तुम इस तक लेके भी आप ही जाओ, कैसे लेके जाओगे। So that's all I could make out today from today's reading. So before we wind up, we would like to conclude with our concluding prayer. Thank you. Sunaina, would you like to share anything else, or anyone? No, I think beautifully you shared your like takeaways from this chapter today, and yes, I think clarity is just like a power. We can very well feel from their experiences. और उन्होंने share भी ऐसे किया है कि if from a normal human being journey, I mean, becoming a saint, like they also crossed like so many phases and so many things and so many like distractions in a way. But I think ये वो बताना भी इसलिए चाह रहे हैं, वो हाईलाइट भी अभी इन चैप्टर्स में, अभी उन्होंने जर्नी में तो आगे शुरू होना है आई बिलीव, लेकिन जो ये सब बताने का और एक्सप्लेन करने का पर्पस भी यही है कि इफ बीइंग while being a normal human being, जस्ट उनको क्लैरिटी थी, दैट्स व्हाट इम्पोर्टेंट इज। बट वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ही वो एनलाइटन सोल अभी नहीं बने हैं। एनलाइटनमेंट उनके पिछले हो सकता है कि जो भी वर्क ही हैज डन या उनकी सोल में जो भी अचीवमेंट्स हैं, तो वो रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, एनालाइज कर पा रहे हैं कि किस तरह की सोच का चुनाव करना है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा इंसाइट है कि जब हमारी लाइफ में भी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, तो उस समय हम चूज किस तरह की थॉट्स का करते हैं। दैट्स व्हाट इम्पोर्टेंट इज कि चॉइसेस क्या है हमारे पास। तो उनके अंदर ये विजडम मैंने देखा कि वो बचपन से ही था कि विजडम टू चूज द राइट। उनकी तरफ से चीजें गलत बहुत कम हुई हैं अभी तक, जहां हुई भी हैं, मतलब गलत तो सही नहीं कहेंगे, आई मीन जो कि प्रोडक्टिव था और जो उनके लिए आउटकम ओरिएंटेड था और प्रोसेस ओरिएंटेड भी था। मतलब वो आउटकम पे उनका शायद फोकस कम था, प्रोसेस पे ज्यादा होता And he was था। always उनको पता था कि ये progressive. गोल है, उसमें है क्या ये नहीं पता था उनको बट कुछ है और बहुत बड़ा है। हाँ, लेकिन वो प्रोसेस में पूरी तरह से फोकस्ड है कि जो एफर्ट करना है उस चीज को करने के लिए, तो वो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट कर रहे हैं। भागना है तो भाग रहे हैं वो किसी भी मतलब ही इज गोइंग बियॉन्ड लाइक हिज इमेजिनेशन इन माइंड, आई थिंक। काफी Love. सारी चीजों में वो बहुत करेजियस भी रहे हैं, मैंने ये देखा उनके कैरेक्टर में कि वो बहुत ज्यादा करेजियस थे। ही मतलब फियरलेसली आगे बढ़ रहे हैं, उनके मन में ऐसा कोई डर नहीं है। उनके आसपास के लोगों में डर है बट उनमें कोई डर नहीं है। ये एक बड़ी अचीवमेंट है। जो मैं कई बार तुषार से भी जब मैं बात करती हूँ, तो आई फाइंड दैट जो फियरलेसनेस है, सो आई जस्ट फील इन हर करेक्टर ऑल्सो कि फियरलेसनेस होना एक बहुत बड़ी पावर देता है आपको लाइफ में, मतलब आगे शांति से मूव ऑन करने के लिए। पता है कि खलबली है, लेकिन ऐसा अपने अंदर विश्वास है कि मतलब मेरे को फियर है नहीं, मतलब मुझे पता है कि मेरे को बिलीफ है, सेल्फ बिलीफ बहुत अच्छा है, स्ट्रांग है अंदर से। तो ऐसा मैंने उनके करेक्टर में भी पाया कि उनको सेल्फ बिलीफ है कहीं ना कहीं, उनको पता है कि आई एम बीइंग प्रोटेक्टेड। और बचपन से आई थिंक काफी सारे मेंटर्स का साथ मिला और चलते रहे, तो और ज्यादा वो मुझे लगता है कि डिटर्मिनेशन और स्ट्रांग हो गई दैट यस ही इज ऑन द राइट पाथ। या बट दिस इज मतलब क्यूरियोसिटी बनी हुई है और एक्साइटमेंट भी पूरी बरकरार है आई बिलीव। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल बात है अब तक इस कहानी के अंदर, बहुत पकड़ है। That's या right. थैंक That's यू। lovely. Lovely. I hope everybody is enjoying
the sessions and the readings and getting one or the other thing out of these chapters. So we conclude with the concluding prayer. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukh bhag bhavet. May we all be happy. May we all be healthy and free from illness. May we all be prosperous. May no one ever suffer in any way. Thank you so much, everyone, for joining in and giving your time and sharing your insights in our session. Thank you. We will see you day after Wednesday, same time, 7 p.m. Thank you, Sheetal. Thank you, Monica ji. Thank you, everyone. Thank you, Ji. Thank you so Thank much. you. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Bye bye. Thank you. Good night. Take care and Good bye-bye. night, Bye. everyone. Shubhratri. Thank you. Okay, जी, good night.